السلام علیکم مراگش بزانہ معشمارہ وشت کنے چکے جیونی آئی کشگورانگ وستگیں بازیں روچا مگندے کے معاصرہ بر جائیں تو ادھر گتا محلوق کے استوتی کتشات تحفظات اظہارہ کنگان چونکہ ایم پی گوادر مولانا ہدایت الرحمان صاحب عام گستگیں روچا یہ گپ پہ اظہار کو تکا تو آئی گوشک ہمیشہ کے چیف سیکرٹری وزیر اعلیٰ بلوچستان یہ دیکھے اعلیٰ حکام کے استیں یہ گندنند بوتا تو جیونی آئی کشگور معاصرہ کے استیں ختم کنگ چونکہ مدستگا وستگیں دار روچا پیسر ایک ویلے پیشت چرشپد جیونیا بازیں مردمے گرفتار کنک بتگا اور دو منی مگا مگندے کی چیزیں مردم کے استاں لاش ہم دوڑ دیا بتے تھا تو ای ودا جیونی معاشرہ سبا ادا مگندے کے اشیاء کردنوشی قلت ودی بتا اور دو منی مگا بارڈرہ گو ہم گرنچے کاروبار سخباز متاثر ہیں تو گوادرہ اور جیونی نمگا ایران بارڈرہ روا کے واسطہ محلوق مشکلانی آماچیں تو مولانا ہدایت الرحمان صاحبہ گوشتہ جیونی آئی کشگورہ معاشرہ ختم کنک نوی یا محلوق کے نقل و حرکت کے ہستیں پائسرا جتنی پابندی الاس کنک نواں تو اوت ایز اے عوامی نمائندہ رو ادا راہاں پچکا تو مگندے کے واقعہ وستگیں دار اوچا پیش اتکا تو انگتا راہانی بند کنک اور سڑکانی بند کنک چرسا محلوق کی مشکلات بعض ہیں تو ادھر کتا اعلیٰ حکام کے ہستیں چوڑی اقدامات کنک بوگانا دو نمگا ایران یا گوادر کے ہستیں آئی آمد و رفت پمیش کا متاثر ہیں کہ کوسٹل ہائی وے گوادرہ جیونیا یا ایران بارڈر ہوتے ہیں تو وستگیں بازیں روچا چی بند ہیں تو یہ حوالہ ملوک کے ہستیں مطالبہ کنگائیں کہ پچکنک بھی تو مروچی ہم دستا کہ بازیں جاگاں اعلیٰ حکام یا دو نمگا گوادر انتظامیہ آئی ہم گشک بتا کہ ایرانی پچکن کے حوالہ اقدامات بزوری تو یہ وقت لائن سرا میں گوادر رپورٹر نور محسن امرداری کنگائیں آئیے گیشن کا پتران کریں. السلام علیکم نور. وعلیکم السلام سر. نور تی باز میں نتوارے تو میں پروگرام آوارے تو چکے مگندگائیں کہ گوادرہ گستگیں دار اوچا یہ جیونیا رو کے راہ کے ہستیں بند ہیں یا جیونیا معاصرہ بو گائیں تو یہ حوالہ گوادر انتظامیہ یا یہ دیکھے اعلیٰ حکام کے ہستیں یعنی چھ گوشیں چھ بنیادی وجہیں گستگیں بازیں وداں بازیں روچا رکاوٹ موجود ہیں یا محلوق کے آمد و رفت دو منی مگا ایران رو کے کاروبار یا بارڈر کے ہستے متاثر ہیں. منتور الطاف صاحب دراصل یہ وڑیں کہ میں شمد رسن علم آستے ہیں کہ 6 جولائی جیونی علاقہ ایک ناخوشگواریں واقعہ بتگا تو ناخوشگواریں واقعہ روچا بغیر داں کے مرچی کی روچا تک جیون یہ تیوگیں علاقہ کے ہستے ہیں اودا یا قسمیہ ہما صورتحال ہیں کہ آؤد مردمانی واسطے یقیناً یک شریں عملی نہیں آؤد مردم انتہائی تکلیف اور مشکل صورتحال تو قائم تو یہ سلسلہ انتظامیہ گما گب جتا انتظامیہ اکشی ماہ کرتے ہیں چاریں ہما مردم کے غلط مردماں یہ علاقہ تو کا موجود ہیں شاید ہمانی سبب عمل غلط عمل بھی گئے علاقے امن خراب بہ گئے کاروبار خراب بہ گئے تو آہانی ماں یا کس میں ایک سرچ چیئے کرنے گئے تو یہ سلسلہ میں علمات کے ہر ہما مردمے کہ غیر مقامی مردمہ غیر مقامی اچھی مراد ہے کہ ضلع گوادر اچھی دری مردمہ یا کہ بعض اچھے مردمہ سا کہ بلوچستان اچھے ہم دری مردمہ دیگے صوبے ہیں وہیں تعلق ہیں ضلع انتظامیہ باقاعدہ آنا وارن کو تگا آنا الٹیمیٹم دا تگا کہ انچو روچ تو کا سے جیونی علاقہ در بیانتے ہیں تو مردم کی اس طرح مردم درد کرنا لیکن آئی اچھی باوجود جیونی صورتحال بنی گا غیر یقینی صورتحال ہے اور آؤدہ مردم رضا کے چھ بھی گئے البتہ ایک پریشان کن صورتحال ہے اور شاید انتظامیہ وقت بن کا تذبذب ہے شکار ہیں اور بن کا چشیں مناسب فیصلے کر خود کنگانا ہے کہ علاقے مردمان واسطہ یا بہترین اور یہ خیری معاملے بھی بیتے ہیں. جی جو غیر مقامی مردمانی گپا کنگائی دیکھے صوبہ چھ تعلق داروں کے مردمہ یا بلوچستان دیکھے ضلعانی مردمہ امانی گپ ہو گئے جی شین تو کا مختلف مردوں بیتگا مطلب دیگے صوبانی مردوں بیتگا غیر بلوچستانیاں بیتگا اور دیگے ضلع گوہانی تعلق بیتگا مطلب ضلع گوادرہ چھ دنی دیگے ضلعانی مردوں بیتگا یہ دوئے مردوں دوئے قسم مردوں کی بیتگا کہ غیر صوبانی مردوں بیتگا اور دیگے ضلعانی مردوں بیتگا ضلع انتظامیہ گوادرے گا یہ دوئے آنا وارن کو تگا تو آنا الٹیمیٹم دا تگا آنا ٹائم دا تگا کہ انچو روچ تو کا پدا انچو گھنٹائے تو کا جیونی شہرہ در جاتے ہیں اور آہانی واسطہ یہ ہم وارن سمجھ بیتے گا. جی اچھا نور دو منٹ مکان چکے گوادرہ اللہ رب العزت نے جس کی عزت کی توقیر کی تعظیم کی ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اس کی تسخیر کریں ہم نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں
पाकिस्तान बनाने से लेके पाकिस्तान बचाने तक पाकिस्तान की मुसल्लह फौज, पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी, पाकिस्तान के पुलिस के एहलकार, नेवी के एहलकार, एयरफोर्स के एहलकार, हमारे वो बहरी बर्री फौजी जो जवान हैं, वो रेंजर्स, स्काउट, लेवीज और यहां तक कि शहरी, जिन्होंने दूसरे की जान बचाने के लिए, जिसमें इंसानियत की हुर्मत को बचाने के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया, वो शहादत के दर्जे पे फायज हो जाता है। बहुत मुश्किल है कि आप अपनी जान देकर के दूसरे की जान और माल की हिफाजत करें, और बड़ा मुश्किल है कि सख्त मौसम में संगलाख पहाड़ियों में खड़ा होना, दुनिया की चोटी पे बर्फ से लड़ना और दुश्मन से लड़ना, सहराओं में खड़े होकर के सख्त गर्मी से लड़ना, रेत से लड़ना, रेतीले तूफान से लड़ना और दुश्मन से लड़ना, ये बड़ा मुश्किल काम है। मगर जो हमारे जवान और अफसरान उन हालात में एक दिन नहीं, हफ्ता महीना नहीं, सालों खड़े होते हैं उन सगलाक चट्टानों के पीछे, सनसनाती गोलियों के पीछे, ठंडी हवाओं के पीछे, रेतीली जमीन में जहां इंसान खड़ा होना नाप दोबार हो जाता है, और सिर्फ अकेले खड़े नहीं होते हैं, बावर्दी खड़े होते हैं, असला के साथ खड़े होते हैं। क्यों खड़े होते हैं? हमारी हिफाजत के लिए, कौम की हिफाजत के लिए, जिस सरजमीन को हासिल करने के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दिया, उसकी हिफाजत के लिए, उनके लोगों की हिफाजत के लिए, उनकी जानो माल की हिफाजत के लिए, उस नजरिए की हिफाजत के लिए। तो शहीद के सवाल पे दो राय नहीं हो सकती। बहुत अच्छी मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बात की, मुझे उम्मीद है, कभी उम्मीद है कि वो खुद भी अपने उस बात पे पछता रहे होंगे, उनको भी नदामत हो रही होगी कि मुझे ये अल्फाज अदा नहीं करनी चाहिए थी, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपने अल्फाज को वापस लेंगे। और जो लोग उनके हम ख्याल बनते, हमारी तहजीब इंसान से कोताहियां गलतियां हो जाती हैं, और अगर किसी को पछतावा हो, किसी को ये हो कि मुझे ये अल्फाज नहीं करने चाहिए, हम भी लोग हैं, हमसे भी जबान से कभी जज्बात में किसी भी और हालात में बात हो जाती है, तो वापस ले लेना चाहिए। तकसीम नहीं होनी चाहिए, राय शुमारी नहीं होनी चाहिए, और हमें तौकीर करनी चाहिए। सिर्फ लवाइकीन की नहीं, हम भी तो उनके मुतासिरीन हैं, हमें भी तो फख्र है अपने शहीदों पे, 18-18-20 साल के जवानों पे, निकले हुए उन लेफ्टिनेंट्स पे जो अभी सेकंड लेफ्टिनेंट होते हैं, जिनकी मूछें नहीं आती हैं, जिनकी रेख नहीं आती, जिनकी दाढ़ियां नहीं उगती हैं, वो आपके लिए, हमारे लिए अपनी जान देते हैं। हमें फख्र है उन पे, वो हमारा सरमाया, हमारी आन है, हमारी शान है। उनकी तौहीन, अल्लाह आपको जज़ाए सबकी तौहीन, इस मुल्क की तौहीन। और रुतबा शहादत के बारे में अगर कोई बात करे, अल्लाह के कलाम को खोल के देख ले। मैं यहाँ पे बड़े आज़ी से बात करूँगा कि इस्लाम सलामती का दीन है, मोहब्बत का दीन है, रवादारी का दीन है। और जो आज मैं आखिर में चंद अल्फाज इसलिए कहूँगा, शहीद से जुड़ा है पाकिस्तान। आज इनके साथ जो वो शहादत हुई, जो लोगों ने आज भी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, सिर्फ जानों का नहीं, अपने घर बार को छोड़ के आते हैं, अपने प्यारों को छोड़ के आते हैं, अपने वालदैन को छोड़ के आते हैं, अपने बच्चों को छोड़ के आते हैं। उनकी कीमत और मंजिलत हम जानते हैं, और उन्हीं के वजह से आज जब हमने शिकस्त फाश दी अपने से 5 गुना उस क़ुव्वत को, जहाँ पे इंसानियत की कदर नहीं है, किसी मजहबी नजरिया की कदर नहीं है नरेंद्र मोदी की हुकूमत में। मैं पूरे भारत को नहीं, मगर नरेंद्र मोदी के उस फलसफा को, उस पॉलिसी को बयान करना चाहता हूं, जो इंसानियत के साथ दुश्मनी करता है, जो कहता है ग्रेटर इजराइल। ग्रेटर इजराइल के माने क्या? कि मासूम निहत्ते बच्चे, बुजुर्ग, औरतों को कत्ल करो, उनके लाशों पे अपना ग्रेटर इजराइल बनाने के सपने देखो। ये किन सी इंसानियत की बात है? इस किस मजहब और किस धर्म में ये इजाजत दी गई है?
उसने जब ललकारा तो यही अफवाज पाकिस्तान ने आपको न सिर्फ बचाया बल्कि शिकस्त फाश दी, और अफवाज पाकिस्तान और फजाइया के जवानों ने आपका सर फखर से बुलंद कर दिया, और जिसके बजाय बदले पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों को पछाना जाने लगा। और फिर जब एक और जंग की बादल मंडलाए हमारे यहाँ, ये हम नहीं कहते कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक बहुत ही दिलेर और बड़े ही ज़बरदस्त फील्ड मार्शल है, ये तो ट्रम्प भी कहता है, ये तो मैक्रोन फ्रांस का सदर भी कहता है जिसके उन्होंने तैयारे गिराए, ये तो शी जिनपिंग साहब भी कहते हैं, ये तो व्लादिमीर पुतिन भी कहता है, एमिल मैक्रोन भी कहता है। तो ये हम थोड़ी कहते हैं। ज़बान खल्क को नक्कारा खुदा समझो, तो सिर्फ पाकिस्तान की ज़बान खल्क नहीं, पूरी दुनिया से आवाज़ उठ रही है कि हमें इतने सीसा पिलाई हुई दीवार बना दिया अफवाज पाकिस्तान ने, हमारे मुसल्लह अफवाज ने, हमारे ब्रेव और दिलेर जर्नल ने बिला खौफ व ख़तर हर महाज पे खड़े होते हैं। और सिर्फ अपने महाज में नहीं, जब हमारे खित्ते में बदमनी फैल जाता है, जब अगियार हमला करते हैं, जब भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश करते हैं, तो फिर वहां पर भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अंडर द लीडरशिप ऑफ वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब अपना वो किरदार अदा करते हैं कि 12 दुनिया के तमाम रसाइल, तमाम मीडिया, तमाम जर्नलिस्ट, तमाम टॉक शोज में अगर जिक्र होता है तो पाकिस्तान का होता है, अगर जिक्र होता है तो पाकिस्तान के किरदार का होता है, अगर जिक्र होता है तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का होता है, अगर जिक्र होता है तो शहबाज शरीफ की एक अनथक सफारती कोशिशों की होती है, इसाक डार साहब की सफारती कोशिशों की होती है। तो क्या आपको इससे खुशी नहीं? क्या आप शर्मिंदा है इस कामयाबी पे? जो लोग शर्मिंदा है, मैं उन पे शर्मिंदा हूं। बहुत अच्छे, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। जो हमारी कामयाबी पे शर्मिंदा है, मैं उन पे शर्मिंदा हूं। अल्लाह ने हमें उरूज दिया है और हमारी कोशिश होगी कि इस न सिर्फ अपने मुल्क की हिफाजत करें, और उसके लिए हमारी मुसल्लह अफवाज के लोग, अफसर और जवान अब भी तैयार खड़े हैं और ताक़यामत तैयार खड़े रहेंगे अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए, शहादत नौश करने के लिए। और सिर्फ न सिर्फ अपने मुल्क के लिए, अपने बरादर इस्लामी मुल्कों के लिए भी, अपने भाइयों की जान और माल की हिफाजत के लिए, अपने बरादर लोगों के लिए, और जहाँ भी इंसानियत, सिर्फ इस्लामी मुल्क नहीं, तारीख गवाह है पाकिस्तान का। जब वियतनाम में जुल्म हो रहा था तो हम वियतनामियों के साथ थे, जब हिंडरोस में जुल्म हो रहा था तो हम हिंडरोस वालों के साथ थे, जब क्यूबा पे जुल्म हो रहा था तो उनके साथ थे, जब फलस्तीन पे जुल्म हो रहा था हम फलस्तीन के साथ थे, जब कोरिया पे जुल्म हो रहा था हम कोरियन के साथ थे, जब चाइना जापान के जुल्म हो रहा था हम मजलूम के साथ थे। हम कभी मजलूम का पीछा नहीं छोड़ते, हम मजलूम के साथ खड़े होते हैं। यही पाकिस्तानी कौम की शान है, आन है और पहचान है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आवर आर्म फोर्सेस अंडर द बैनर ऑफ UN and peacekeeping, they are peacekeeping all over the world and they are sacrificing their life. पाकिस्तानी अमन का जो दस्ता है फौज का, वो पूरी दुनिया में जाते हैं। बल्कि मैं तो जानता हूँ, मेरे जो MS है कर्नल सिकंदर, वो भी गए थे अफ्रीकन मुल्क में पीस कीपिंग के तौर पे। मेरे खानदान से भी बच्चे, मेरा अपना भतीजा गया हुआ है पीस कीपिंग में, वो एक मेजर है। तो पीस कीपिंग में जाते हैं, हम दूसरों की जान की हिफाजत करने के लिए जा सकते हैं, तो अपने लोगों की क्यों नहीं करेंगे? तो वी आर द पीस कीपर। आसिम मुनीर इज वर्ल्ड्स नंबर 1 पीस कीपर, और माय प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ इज द पीस मेकर। और ये बात सब ने तस्लीम किया है कि शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम की जो पीस मेकिंग है उसकी कोई सानी नहीं है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे, हमारे वतन पे अपना फजल और करम करे, और हम आपस में जिस तरह आज बैठे हैं इसी तरह बैठे हैं। मसाइल का हल बैठ के हल करना होता है, और एक दूसरे की इज्जत और एहतराम करनी पड़ती है, एक दूसरे के चीज़ों को, जज्बात को समझना पड़ता है, उनके तकालीफ को समझना पड़ता है, उसके मसाइल को समझना पड़ता है, और मौजूद जो वसाइल है उससे हल, और कुछ ना कर सके तो उसके साथ इजहार हमदर्दी तो करें, उसकी गम में बराबर के शरीक तो हो। यही इंसानियत का दर्स है। और जब किसी के घर से
लाशा उठे तो उस पर नमक पाशी नहीं, उस पर हमदर्दी की जाती है, गुल पाशी की जाती है, और यही रुतबा है शहीदियों का। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके घरों में खैर और बरकत अता फरमाए और इस खित्ते को अमन और सलामती का गहवारा बनाए। मोहतरम जनाब गवर्नर साहब, आपका भी, आपकी तमाम टीम का और गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद हाल हाशमी और कौमी पैगाम अमन कमेटी के रहनुमाओं की उनके सामने रखूंगा। ये चैनल कोई स्टेट की पॉलिसी के खिलाफ भी नहीं है, ये बलूचिस्तान की जो हकीकी बातें हैं उनको उजागर करता है। हमारी बदकिस्मती की बात है, इसको हम बदकिस्मती ही कह सकते हैं। वॉइस चैनल हमारी सकाफत का हिस्सा है, पार्ट ऑफ, यानी कि हम जो मल्टी कल्चर पाकिस्तान है, कल्चर उसका एक हिस्सा है, लेकिन ये बदकिस्मती है। अब एक ही चैनल है, अब आप उसको भी प्रमोट नहीं कर सकते, तो मैं क्या बोलूँ कि ख्वाजा आसिफ की ज़बान में कह सकता हूँ कि कोई शर्म भी होती है, कोई हया भी होती है। अब ये कोई भी अपने ऊपर ले, जिसको जो ज़िम्मेदार है वो उसके ऊपर, मैं उसी को कह रहा हूँ जो भी ज़िम्मेदार। पाकिस्तान में बलूची का चैनल सिर्फ एक है और बलोच जो है वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, और पूरी दुनिया में बलोच जो आप ये समझे कि हमारे इर्द गिर्द के कई मुल्कों में तो एक कसीर तादाद उनकी रहती है, और वो सब जो है ना इस्तिफादा हासिल करते हैं वश टीवी से, पाकिस्तान से। पाकिस्तान का जो बड़ा बुनियादी और वाइटल हिस्सा है बलूचिस्तान, वहाँ से ख़बरें आप और जो वहाँ की तस्वीर है वो पूरी दुनिया को फराहम करते हैं, तो उसके लिए फिर वसाइल की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हम हर फोरम पे आवाज़ उठाते रहे और वश के लिए आइंदा भी उठाते रहेंगे, और जब दूसरे इदारों को पैसे मिलने चाहिए तो वश को भी मिलने चाहिए। वश न्यूज़ हो, जो जितने लोकल हमारे बलूचिस्तान के लोग जो सरमाया लगाते हैं, न्यूज़ चैनल बनाते हैं, की सरपरस्ती की उनकी ज़रूरत है, उनको वसाइल देने की ज़रूरत है। जैसे नेशनल मीडिया को हम नवाजते हैं, फिर वो खुद रपत्ती बन जाते हैं, बाहर मुमालक जाकर सैर सपाटे करते हैं। तो हमारा वश न्यूज़ जैसे जितने लोकल न्यूज़ हैं, न्यूज़ चैनल हैं, इनकी वश न्यूज़ हो, जो जितने लोकल हमारे बलूचिस्तान के लोग जो सरमाया लगाते हैं, न्यूज़ चैनल बनाते हैं, की सरपरस्ती की उनकी ज़रूरत है, उनको वसाइल देने की ज़रूरत है। जैसे नेशनल मीडिया को हम नवाजते हैं, फिर वो खुद रपत्ती बन जाते हैं, बाहर मुमालक जाकर सैर सपाटे करते हैं। तो हमारा वश न्यूज़ जैसे जितने लोकल न्यूज़ हैं, न्यूज़ चैनल हैं, इनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, जिनके माशी मुश्किलात इसको हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए। वश न्यूज़ के हवाले से आपने बताया कि आप लोगों के जो इश्तिहारात वगैरह, मैं समझता हूँ कि ये फेडरल को जितने थ्रू आउट शाल चैनल्स हैं उनको कम अज़ कम फोकस करना चाहिए और उनके जो मसाइल हैं उन पर किया जाए। वश में बलूची ज़ुबानें अक्षरें न्यूज़ चैनल और 20 साल की आई खदमात बलूची ज़ुबाना बलूचिस्ताना पाकिस्ताना असला हुकूमत 4 गुजार करना गए और वश न्यूज़ चैनल हम आई हमारा सपोर्ट करते रोसांची पीसर वश के कंट्रीब्यूशन हस्ते बलूचिस्तान हर मसाइल उजागर करना माँ ये अप्रिशिएट करना क्योंकि माँ समझा कि एक कौमी में जो हस्ते ज़ुबान सरा उली चैनल वश न्यूज़ बादिशी प्रमोशन विविधता और सपोर्ट करना वश न्यूज़ एक मुश्किल वक्त अच्छे बलूची ज़बान है, बलूची लफ्ज़ां के, बलूची तवार है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो का वायद चैनल वश है जो कि बलूची ज़बाना गब्जा और बलूची ज़बान बलूचिस्ताना सिंधा और पंजाबा साउथ पंजाबा टिक टाक गबजनक भी शर्जीरी नाम मेमन में मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है और आयंग आलेवल कने और बैग लोटे ज़रूर बैग। आपकी जो ये दरख्वास्त है, आपकी जो ये अपील है, मैं अपने जो इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर हैं सरजील नाम मेमन साहब, मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि आपका जो ये इशू है इसको रिजॉल्व किया जाए और आज आपकी जो ये रिक्वेस्ट है इसको सुना जाए। आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो रिटर्न में लिख कर दें, हम मिनिस्टर से बात करेंगे, CM साहब से बात करेंगे। जो अगर आपके साथ इस तरह हुआ तो उनको आपके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोशिश करें। बलोच हैं, जहाँ सिंधी हैं, जहाँ जो भी पाकिस्तानी वश चैनल का बड़ा अच्छा नाम है और उनके CEO बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। सिंध तो एक बहुत बड़ा, यहाँ हमारे बलोच तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख के करीब सिंध में बलोच रह रहे हैं। यहाँ पर बलोचों की एक बहुत बड़ी आबादी है जो वश चैनल को बड़े पसंदीदा उनका चैनल है। 20 सालों से हमने कई दफ़ा फाइट किया। डॉक्टर मालिक के दौर में कुछ उन्होंने 5 करोड़ रुपए का फंड रखा, लेकिन बदकिस्मती से वो सब जो है वो पंजाब के मीडिया को चला जाता है या फहमी अखबारात है ज़्यादातर उनको चला जाता है, बंदर बांट हो जाता है, लेकिन जो हकदार है वो हकदार को मिलता नहीं है।
मणदार चारों का ब्रेकअप माशमरा वशत कनी का पुत्रान कनगाई चुके ग्वादर के हस्ते गोशक अमी भी के एक सरमाया शहरी उधर सरमायाकारी भी या डेवलपमेंट वाला ग्वादर बिल ग्वादर तहसील जीवनी के हस्ते चीज़ें किलोमीटर 90 किलोमीटर के साथ दूर हैं तो वस्तगें दाद रोचा तकरीबन आइए मुआसरा हैं और ये हवाला के हस्ते दमागे MPA मुंतखब नुमाइंदा या इंतज़ामिया हुई आला हुकाम के हस्ते चूड़े इकदाम का नगाना हाँ तो हाँ कुछ हम सजा दिए हो गए माँ का पुत्रान दिमा बनी वद BNPA मरकज़ी रहनुमा एडवोकेट सईद फैज़ साहब ने गुमरदारी कर गए आइयों गेशन के पुत्रान ने अस्सलाम वालेकुम एडवोकेट साहब। वालेकुम सलाम एडवोकेट साहब की बात मिन्नतवार है तो अदकश्ता मराकशा आवार है तो सर उर्दू में आपसे बात करेंगे तो चूँकि आप का ताल्लुक भी ग्वादर से है एक सीनियर पॉलिटिकल वर्कर हैं कानूनदान भी हैं तो हमने देखा कि गुज़श्ता 10 रोज़ से सो जीवनी है जैसे आपका आबाई इलाका भी है जिनको गैर ज़रूरी तौर पर मुआसरे में रखा गया है सड़कें रास्ते बंद हैं लोग जो हैं शदीद मुश्किलात का शिकार हैं तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ के मुंतखब नुमाइंदे इंतज़ामिया या हुकूमत बलूचिस्तान इस हद तक बेयस क्यों है? हाँ देखिए इस मसले पर गुज़िश्ता दिनों एक मुलाकात के दौरान मैंने और मेरे पार्टी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ग्वादर के दोस्तों ने डिप्टी कमिश्नर ग्वादर से ये रिक्वेस्ट किया था उनके ऑफिस में कि इस मसले को आप उठाएं और वहाँ जीवनी में एक RHC है रूरल हेल्थ सेंटर कोई बड़ा सिविल हॉस्पिटल नहीं है वहाँ के मरीजों को अपने इलाज के लिए ग्वादर आना पड़ता है मीर अब्दुल गफूर कलमती हॉस्पिटल और दूसरा है इंडस हॉस्पिटल उसके बाद तीसरा स्टेप इलाज के लिए हमारा है मकरान में तुर्बत जो कि केच में अच्छे और बड़े हॉस्पिटल्स मौजूद है और तीसरी जगह जो है वो कराची है इलाज के लिए। इस वक्त सारे मरीज फंसे हुए हैं और दवाइयों की भी किल्लत है अशियाए खुर्दनोश की भी किल्लत है और मैं ज़ाती तौर पर यह राय रख सकता हूं और इसको आपके चैनल के थ्रू बता सकता हूं कि राइट ऑफ मूवमेंट को कंट्रोल करना एक जगह से दूसरे जगह सफरी सहूलियात को रोके रखना ये दरअसल आइन की खिलाफ वर्जी है। अगर हमारे सिक्योरिटी अदारे ये समझते हैं कि सिक्योरिटी रिस्क है तो उनको कम से कम एक वहाँ के नोबल जो शहरी हैं इनोसेंट जो शहरी हैं यहाँ का चेयरमैन बैठा हुआ है जीवनी में काउंसलर्स भी हैं यहाँ स्कूलों के असातिज़ा भी हैं और सोशल वर्कर्स भी हैं आम गरीब माइग्रेंट भी हैं वो तो किसी वाक़या में इन्वॉल्व नहीं है। ये तो हमें अफसोस हुआ है कि इस तरह के वाक़यात बलूचिस्तान में पे दर पे हो रहे हैं मगर इसको रोकने का तरीका ये नहीं है कि आपने गुज़िश्ता 12 दिनों से जीवनी के ज़मीनी रास्ते ख़त्म कर दिए हैं तो ये मेरे ख्याल में ये एक ऐसी है कि एक इज्तिमाई सज़ा हम सब भुगत रहे हैं। तो डॉक्टर साहब जैसा कि आपने फरमाया कि जो जीवनी में रहने वाले या उसके गर्दनवा जो इलाके के रहने वाले लोग हैं उनका ज़्यादातर जो है आना जाना आमदोरफ्त इलाज के हवाले से या किसी और काम के हवाले से या तो कराची या ग्वादर या फिर केच जाना पड़ता है तो लेकिन ये रास्ता ग्वादर केच या जीवनी या दूसरी तरफ कराची जाता है तो मुकम्मल तौर पर बंद है लोग जो हैं मुआसरे में ये भी आपने फरमाया कि इस तरह के वाक़यात पूरे बलूचिस्तान में पे दर पे हो रहे हैं अगर तहसीलों को या छोटे शहरों को या बड़े शहरों को इस तरह बंद करना इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है तो आप नहीं समझते हैं कि जो इलाके के MP है उनको एक किरदार अदा करना चाहिए या जो ज़िला इंतज़ामिया है उनको एक्टिव रहना चाहिए इस मामले पे? देखिए मुझे तो लगता है कि ज़िला इंतज़ामिया जो है वो तो सिविल इंतज़ामिया है वो बेबस है। दूसरी बात यह है कि आप नुमाइंदों की बात कर रहे हैं ये नुमाइंदे कौन हैं? ये नुमाइंदे ऐसे नुमाइंदे हैं कि ये भी बेबस हैं। ये भी इसलिए बेबस हैं कि ये कौन से गेट से मुंतखब होके आए हैं इनका ये तो पहला सवाल यही है। हमारा जो नुमाइंदा है ग्वादर का उसने तो ये ऐलान किया था कि मैं यहाँ के कैंप को बंद करूँगा और जितने भी चौकियाँ हैं उनको बंद करूँगा लेकिन इनके मुंतखब होने के बाद हालात मज़ीद ख़राब हो गए। तो हमने तो पहले भी कहा था कि इस तरह बलूचिस्तान में अगर आप समझते हो कि इंसर्जेंसी है
तो जगह जगह चेक पोस्टें और कैंप्स बनाकर आप खुद ही एक तरह से अपने सोल्जर्स को उनकी जिंदगियों को खतरे में डाल रहे हो। जब अगर बलूचिस्तान में एक खतरनाक सूरत-ए-हाल पैदा हुई है, ये जो बलूचिस्तान में एक लड़ाई लड़ी जा रही है, इसको समझने की कोशिश हमारे हुक्मरान नहीं कर रहे हैं और वो एक जंगी माहौल को खुद ही बना रहे हैं। तो इस तरह तो नहीं है ना कि आप जो है ना टोटल इनोसेंट लोगों को पकड़ के हिरासत में ले रहे हो और उनके खानदान में से किसी को पता नहीं है कि वो कहाँ पर हैं। तो ये तो गैर कानूनी है, इसकी तो जाहिर सी बात है कि कोई हिमायत नहीं करेगी। बेहतर ये है कि मौजूदा हुकूमत अपने एजेंडे को तब्दील करे, ये जंगी माहौल को ख़त्म करे। अगर आप सारे लोगों को इस तरह माशरे में रखोगे तो ये इसमें फिर ये ज़्यादा बढ़ेगी। अगर आप चाहते हो कि बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल नॉर्मल रहे, इसके लिए आपको मुज़ाकरात करने चाहिए, इसके लिए आपको तमाम कुओं को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। आपके पार्टी को भी नहीं मानता और मकामी लोगों के जरगों के फैसलों को भी नहीं मानता, मकामी कबालियों के प्रोग्राम है और उनका जो ओपिनियन है उनको भी नहीं मानता, और जो मेरे दिल में आए तो मैं कर लूँ। तो इसका मतलब है कि जो मिलिटेंट्स कुव्वत आपके रूबरू लड़ रहे हैं वो भी तो ऐसा कर रहे हैं। तो इससे तो बलूचिस्तान के अवाम अब हर तरह से फंसे हुए हैं। ये जीवनी नहीं है बल्कि हर शहर में आप जाएं पूरे बलूचिस्तान में हालात कंट्रोल से बाहर है और मौजूदा हुकूमत जो है वो वन साइडेड है, इम्पार्शल नहीं है। बयानात वो अपने इक़्तिदार की कुर्सी को मजबूत करने के लिए और खुशनुदी के लिए बयानात देते रहते हैं। उनके बयानात और उनके बातों की वजह से, उनके कमेंट्स की वजह से नौजवान मजीद जो है वो दूर होता चला जा रहा है। ठीक है, लेकिन एडवोकेट साहब, चूँकि हम देखते हैं कि जो अगर जीवनी की बात की जाए तो एक कारोबारी मरकज़ भी समझा जाता है, तो न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ग्वादर के बल्कि बलूचिस्तान भर के लोग वहाँ से छोटे मोटे कारोबार के लिए वहाँ जाते हैं या फिर ईरानी बॉर्डर की तरफ जो हैं वो नकलो हरकत करते हैं। तो इन तमाम तर सूरत-ए-हाल में जो वहाँ एक कारोबारी माहौल है वो किस हद तक तबाह हो गया है और कारोबार किस हद तक मुतासर है इस मुआसरे की वजह से? सर, कारोबार तो मौके में तबाह है ना। देखिए, के बगैर तो जीवनी का जिंदगी रुका हुआ है। ग्वादर हेडक्वार्टर है, तमाम दफ्तरी निज़ाम और तमाम बिजनेस और कारोबार और दुकानदारों के कारोबार और अशिया खुर्दनोश की तरसील वो सारा ग्वादर से हो रहा है। अब जीवनी को आगे कोई रास्ता नहीं है, आगे बहरे बलोच है, उस तरफ ईरान है। जीवनी बलूचिस्तान और पाकिस्तान के आखिरी कोने में है और जीवनी के लोगों ने इससे पहले भी इस तरह के मुश्किल हालात देखे हैं। साल साल वहाँ पीने का पानी नहीं है, वहाँ के लोगों ने पुरअमन एहतजाज किया, उनको भी फायर करके हलाक किया गया 1987 में। उसके बाद वहाँ बिजली नहीं है, वहाँ सड़कें तबाह हैं, कोई फंडिंग नहीं हो रही है और माहीगीर जो है समंदर में जा रहे हैं, वहाँ ये गैर कानूनी ट्रॉलरी की समंदर भी तबाह है। अब ये लोग क्या करें? अब ये एक सियासी बहरान शुरू हुआ है, एक गुरिल्ला वारफेयर शुरू हुआ है। अब जीवनी के मासूम लोगों को कोई किसी से पूछे तो सही, आप अगर लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी हो, अगर आप कोई भी अदारे से ताल्लुक़ रखते हो, वहाँ के मुतबरीन से तो पूछें। आप जो है ना, किसी ने अगर पहाड़ का रुख किया या कोई गलत काम किया, आप आके उसके सारे खानदान और रिश्तेदारों के घरों को जलाते हो और घरों को मसमार करते हो। पानवान में आधी से ज़्यादा आबादी को आपने जो है ना घरों को बिल्डोज किया है, तो आप थोड़ा मशावरत तो करें। यहाँ भी तो लोग बैठे हुए हैं, आपको जो मुश्किल है कब आपका साथ नहीं दिया। हमारे इलाके के मुतबरीन ने हमेशा
पाकिस्तान का साथ दिया, हमेशा पाकिस्तान के सेटअप के साथ रहे हैं, हमेशा कोस्ट गार्ड से तावन किया है। जितने भी हमारे नुमाइंदे हैं उनके मीटिंग्स होते रहते हैं, सारे अदारों के साथ हमारे लोगों के रिलेशंस हैं, लेकिन कोई कदम उठाने से पहले हमें नहीं पूछा जाता है, नुमाइंदों को नहीं पूछा जाता है, ना कि साबिका नुमाइंदों को पूछा जाता है, ना किसी पार्टी को पूछा जाता है। अब ये आप मुझे बताएं कि इस रोड को आप कब तक बंद करोगे? ये तो एक तरह से ऐसा है कि आपने मुहासरा किया हुआ है किसी शहर का। तो ये तो फलस्तीन और इसराइल वाला सिचुएशन तो खुदारा नहीं बनाए। आप थोड़ा बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल को अपने मौक़िफ़ को रिविजिट करें। ऐसा तो नहीं है कोई बात करे तो आप उसको चुप करवाएंगे, कोई अपना ओपिनियन दे दे तो आप उसका गला घोंटोगे। तो इस तरह का पुरतशद्दुद माहौल हुकूमत के साइड में नहीं बनना चाहिए। हम ये मानते हैं, हम जानते हैं जो कुछ हो रहा है एक्सट्रीमिज्म वो गलत है, इंतहा पसंदी जो हो रहा है वो गलत है, मगर इसके काज रूट पे क्यों नहीं जा रहे हो? कि रीजंस क्या हैं, इसके असबाब क्या हैं, इसके अवामिल क्या हैं, इसके मुहर्रिकात क्या हैं, उनको तो ढूंढें। पहले तो इस केस को आप डायग्नोज करें, फिर इसकी मैनेजमेंट में जाएं। आप जो है सूरत-ए-हाल को बस ऐसे ही बना देते हो कि फलाना है, फलाना ने किया है। भाई अगर खवारिज से लोग आ रहे हैं तो ये आपकी सिक्योरिटी नाकामी है। बाहर मुल्क अगर आपके मुल्क में मुदाखलत कर रहे हैं तो ये आपकी नाकामी है। तो आप अपने बॉर्डर्स को रोके रखो। और आपने बलूचिस्तान में इसके अलावा भी तो जमहूरी सियासत के मैदान में आपने कौन से सही फैसले किए हैं, ये पूरे दुनिया को पता है। ठीक है कि आपके इलेक्शंस, आपके डेमोक्रेसी, आपके जमहूरियत ये कहाँ किस हद तक है। तो लिहाजा खुदारा मैं आपके अल्ताफ भाई आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये गुजारिश करता हूँ अरबाब इक़्तिदार को कि वो खासतौर पर जीवनी के जैसे मासूम लोगों पर कि उनको अगर किसी ने इंतहा पसंदी किया तो सब लोगों ने तो नहीं किया। आप एक इज्तिमाई सजा दे रहे हो। बिल्कुल एडवोकेट साहब, अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेकिन चूँकि आप सफ़र में हैं तो एक सीनियर बैसित एक सीनियर पॉलिटिकल वर्कर के चूँकि आप बलूचिस्तान को दौरा करते हैं, देखते हैं, गुज़श्ता दिनों आपने पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल साहब से भी मुलाकात की। जो पूरा बलूचिस्तान इस वक्त जिस नाजुक सूरत-ए-हाल से गुजर रहा है, चूँकि आपका काफ़ी तजुर्बा है इस पॉलिटिक्स में, तो मौजूदा हुकूमत में जो हालात पैदा हुए हैं तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत ना बेबस और बेहस क्यों है? तो इस आलात को इस नेज तक पहुँचाने में हुकूमत जो है क्या कोई किरदार अदा कर रहा है कि हालात इस नेज तक पहुँच जाएँ और उनकी हुकूमत मज़ीद चले? इतनी नाकामी का सामना क्यों करना पड़ रहा है मौजूदा हुकूमत को लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से? देखिए, ये जो मौजूदा हुकूमत है इसका कोई सियासी लाइन ऑफ एक्शन नहीं है जी। ये मकालमा नहीं करते हैं। ये सारे लोग एक जंगी सूरत-ए-हाल के अंदर एक जंगी मुनाफाखोर की शक्ल में जमा हुए हैं। ये वार जोन के अंदर बेनिफिशरी हैं। ये वहाँ जनरल हेडक्वार्टर में गलत ब्रीफिंग दे रहे हैं। इन्होंने बलूचिस्तान में जो सनब स्वाइल है, जो कि नेशनलिस्ट हैं, जो ग्रास रूट के सियासतदान हैं, जो सियासी जमायतें हैं, उनको ज़बरदस्ती इलेक्शन से सियासत से अलहदा कर रखा है। और ये हर इंतखाबात में गैर जमहूरी और गैर कानूनी हरकतें करके और इलेक्शन को हाईजैक करके आ जाते हैं। तो ऐसे हुकूमत पर बलूचिस्तान के लोगों को कोई एतमाद नहीं है। और ये लोगों का शुरू से जब वे कुर्सी पे बैठे हैं आज तक इनका एक ही बात है कि सब लोगों को कहते हैं कि आप ग्रे लिस्ट में हो, कि ये लड़के बलूचिस्तान के शहरों में आते हैं और आप लोग इनको देखते हो और इनके तस्वीर वगैरह। भाई आम लोग ग्रे लिस्ट में क्यों हैं? आम लोग बाजारों में हैं, शहरों में हैं, बैंकों में काम कर रहे हैं, स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, खेतों में काश्तकारी कर रहे हैं, माहीगीर अपना फिशिंग कर रहा है, पॉलिटिकल वर्कर अपना काम कर रहा है, शायर अपना काम कर रहा है, अदीब अपना काम कर रहा है। क्या ये सब लोग इन्वॉल्व हैं इस जंग में? बिल्कुल गलत, कोई इन्वॉल्व नहीं है। जो इन्वॉल्व हैं आप उनसे बात करें, लेकिन जो लोग इन्वॉल्व नहीं हैं, जो लोग जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, ये जो मौजूदा हुकूमत है
ان کو الٹرनेट बिठाया गया है ताकि ओरिजिनल लोग सामने नहीं आए। और मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत को मरकज़ ने ही हाईजैक कर रखा है और ज़बरदस्ती लोग तोपे जा चुके हैं और बेशतर नॉन पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं जो कि लोगों को गलत बिलीव कर रहे हैं, गलत बयानात देते हैं और डिक्टेशन पे सियासत करते हैं। जो इनको बताया जाता है, जो इनके मुंह में दिया जाता है, ये वही बात करते हैं। ये कोई आज़ाद हुकूमत नहीं है बलूचिस्तान की और ना ये कोई अवामी हुकूमत है, ना इसका कोई किरदार है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सईद फैज़ एडवोकेट साहब, सीनियर रहनुमा BNP का पुत्रान का नगाह थे मेगुमा मनादार चारों का सईद फैज़ एडवोकेट साहब है मुझे हमेशा के मौजूदा हुकूमत के हस्ते अवामी हुकूमतें नए महलू के मसाइल जंजाला आ शरिया वाकिफ नहीं तो दो भी का बलूचिस्तान जेड़ा पमिश का या आलात सूरत हाल नहजा सरबुतगा दो भी मुझे हमेशा के जीवनी ये कसाने शहर तहसील ग्वादरे दो का ये रंगा मुआसरा कना के महलूकारा जंजालानी देपान कनक मगने के समंदरी राह या ज़री राह या दोमिनी का ज़मीनी राह के अस्नानी बंदिश सब्बा मल्लू के वास्ता शदीद जंजालानी आमाची और दोमिनी का इलाका MPA मौलाना इजाज़त-उर-रहमान साहब के हस्तियाँ बयानात तक महदूद है। तो मरूची कोशिश करने के आई हम लाइन बतूर नहीं मौक़ा जाने की कोशिश बेखने बच्चे का ये वस्तंग रोचा गुश्ता के अगा राह पचकनक नबूत मुआसरा अलास्कनक नबूत बहसीत अवामी नुमाइंदा वत्रो राह पचका भले मगंदगाएँ के राहानी बंदिश सब्बा हज़ारानी असाबा मरीज़ के हस्ते ग्वादरा शुत नकना केचा शुत नकना या अच्छे मरीज़ के हस्ते सीरियस कंडीशन कराची हम शुत नकना। तो मौलाना साहब चीफ सेक्रेटरी या सेक्रेटरी दाखिला या वज़ीर दाखिला वज़ीर आला साहब को टेलीफोनिक राबिता या मैया गप होता भले मगंदे के हालात मज़ीद के हस्ते खराबी नेमगारा होगा या हालात आनी बेहतरी है छोड़ें इम्कानात गेंदक होगा नहीं। तो जीवनी अमा शहरें के ग्वादरा 6 किलोमीटर ईरानी बॉर्डर आगों नज़दीक हैं तो महलू के मज़ने कारोबारी अमूद मौजूद हैं कि न सिर्फ जीवनी जमनंदे मरदमा बल्कि बलूचिस्तान ए दिगे दमंगा जमनंदे के अतील या दिगे बेपारा गूदा अमग्रंचा। तो ये मुआसरा के हस्ते बाज़ संगीन या शबाज शिद्दत इख्तियार को था बस्त के दवाजदर ऊँचा ये मुआसरा सब्बा मल्लुक उदा ना शुत का नात का आमद रफ्त से मुकम्मल बंद है वो गुशा कमी बुता के वस्तनी दवाजदर ऊँचा पीसर उदा एक चेक पोस्ट सर और शकपत के हस्ते सूरत आला मज़ीद शिद्दत इख्तियार को था बाज़ मर्द में बेगुनाह गिरफ्तार कनक बुतगा और रिहाई हवाला मौलाना साहबा स्टेटमेंट दाता और बाज़ी लाशानी दस्कप गया मैं कह रहा आल न्यूज़ चैनल बुतगा के उधर चीज़ें मर्द में लाशम दस्कप था। तो बायदे ये अवामी मुश्किलात के हस्ते शिफूरी अजाला कनक भी जीवनी मुआसरा या राहानी बंदिश ख़त्म कनक और एक पुरमनी राय कशक भी के चर्शिया मल्लुक पदाई जंजालांगो दो चार में भी ब्रेक की जरूरी पदाश में इस मता साड़ी दिन केशिंग का पत्रान करने जून 2025 में 1 खरब रुपए से जाहिद का तारीखी बजट पेश किया गया। बहुत सारे वादे किए गए, सड़कों की तामीर, अस्पतालों और स्कूलों की बेहतरी, साफ पानी की फराहमी, 639 अरब जारी अखराजात, 336 अरब तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस। लेकिन 1 साल बाद तरक्याती मंसूबे फाइलों में हैं या जमीन पर। इस साल तालीम की तरक्याती और गैर तरक्याती बजट की मौजूदा बजट 2023-2024 को 96.5 बिलियन रुपए से 52% बढ़ाकर आइंदा माली साल 2024-25 में 146.9 बिलियन रुपए कर दिया गया है। आइंदा माली साल 2024-25 के दौरान कई बरसों से गैर फ़हाल BHUs और PPHI के जरिए फ़ाल करने की खातिर 100 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। सूबाई हुकूमत ने लोकल कौंसलों के माली बहरान को हल करने के लिए 4.7 बिलियन रुपए से ज़ायद रकम फौरी तौर पर जारी किए। ज़मीनी हकीकत क्या है? अवाम अब भी वही पुराना सवाल दोहरा रहे हैं। ये अरबों रुपए आखिर गए कहाँ? नया माली साल आ रहा है मगर सवाल वही पुराना है। तरक्की आई भी थी या सिर्फ ऐलान था?
मनादार चारों का ब्रेकअप माशुमारा वशत कने मगा पुत्रान चुका नगा जीवनीय ग्वादर सूरत हाल सरा तो खासतौर पर जीवनीय मुआसरा अवाला तो ग्वादर MPA मौलाना ज़्यादातर रहमान साहब चुको वस्तगर हो चाहिए स्टेटमेंट है कि या वज़ीर आला साहब चीफ सेक्रेटरी दाखिला वज़ीर दाखिला को टेलीफोन एक राबता को था तो दोमिनी मगा ये चे पेशरफ होता तो मौलाना ज़्यादातर रहमान साहब MPA ग्वादर में वो अमरादारी करने गए यंग शेंग पुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। तो मौलाना साहब जो कि आपका हल्का इंतखाब जीवनी